हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या वर्सेस पाकिस्तान कर्नल शफाकत सईद, द डिबेट विद अर्नब गोस्वामी। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। We are receiving grace in Afghanistan, and that is the reason you only rented music to your ears, dirty ears, right? And he cannot slap sanctions. Let me tell you now, and I tell you, mind it, remember it. He cannot, till the time America is in Afghanistan, they cannot slap sanctions on Pakistan. Pakistan is not India. India is nothing in the region. Right. What Gaurivaria? It was Harasin Singh. I want to sanctions. Why do you forget? After your nuclear blast, did they slap sanctions or no? What? What? आपके ऊपर sanctions लगाए गए थे कि नहीं? Sanctions are something which hurt you. What do you mean? What sanctions? You've forgotten? Sanctions are something which hurt you. Which we were one? not Sanctions hurt, on right? you hurt us. We get them about such sanctions. What? We were never hurt. Sanctions by on Pakistan hurt India. We went down to build JF-17. This is your level of we went down to geopolitical build knowledge. Al-Khalid 3. We went down to build Augusta. You we can- went down to improve our missile Sir, technology. एक मिनट। What are you कर्नल साहब, talking? ये सब Gloria, ये you जो are strategic आप studies जितने भी expert. अरेबिक ये जो Common अरबी नाम है ना, sense ये इस्तेमाल फ्रॉड करेंगे आपके, साहब। ये अल क्या बात खालिद कर और रहे हैं आप? ये जो Shut up. आपके अफगानी नाम है गौरी गजनवी, प्लीज डोंट से दिस। We know the truth. No, I We know the expect argument from truth. you. These are all Chinese missiles. मत करें आप चाइनीज मिसाइल को हरा पेंट करके उसके ऊपर ऊपर गौरी लिख देते हैं. You think that we'll be impressed? I'm sorry, nobody's impressed. You have all these fraud Chinese missiles जिसके ऊपर you painted green and you write funny names. Sorry, you will be sorry. You are very rightly sorry because we are far ahead of you in R&D on military defense production. You are no match to us. We have 6 Absolutely, of sir. F-17. Absolutely, you are far ahead of us. And we are going on. Sir, you are far ahead of us in the export of terror also. We are nobody. Fighter, right? We don't do it. I have a question to ask That is you. all that you have managed to do. Fazul Rahman, a question. One second, Gaurav, there's a popular choice question today. There is. A normal fool would not get fooled by what you are saying. Okay, now stop going on. Try and expand your vocabulary beyond the word fool, and I will come back to you. I don't know what the Pakistani vocabulary I am is. little dignified. The Thank word which I want to use is too grave, right? You can't stand it, which is fitting for you. Your behavior warrants that words. But Okay. I am dignified. I've had my share of amusement right now, Colonel Shafkat Saeed. Listen to me. Listen to me. I have only one question to ask from the very senior Air Vice Marshal Abid Rao and Haris Nawaz. You know, in India, when people watch this program and other programs have done, they ask, what does the nation want to know? What does India want to know? Now, what the nation, and the nation, not some piddly little East Timor meets Madagascar failed experiment like Pakistan, a real nation like India. What the nation wants to know tonight is the following, Abid Rao and RSN, it's a serious question. And it's a popular choice question. Can you please tell us how you do this? What? We are amazed in India. Do what? With one side you get slapped on one cheek, and with the other side you put out your hand asking them for more money. They have given you $67 billion in money, and they slap you every time. You keep saying we won't take money from you because you slap us, and then you get slapped again and you go back and ask for some more money. You see, in 2016 they slapped you, they killed your people, they carried out the drone attacks, right? You kept complaining and you said, now we won't take money. But again you went in 2016, again you went with your begging bowl and you took $550 million in military aid, right? And then you said our people are dying. Of course your people are dying for two reasons. One is because you have terrorist groups. Secondly, Pakistanis by nature kill their own people for money. This is the system of blood money.
How shameless are you as a nation? You've taken stashes of cash from the same people, right? And then you've reproduced your terrorists. And now you're saying we won't take any more money. You know you will go and take money from the Americans again, Abid Rao. Come on. That's the Pakistani nature, isn't it? Isn't it the Pakistani nature, RSN Singh, to keep taking money from the people who kill their own? Am I wrong in this assessment? Now, Arnab, let me answer this question. Yes, please. Let me answer this question. My question is simple. I haven't even asked my question. I haven't asked my question, Abid Rao. I'll take 10 seconds to ask my question. My question is this, and what the nation wants to know is, are you planning to return the Americans their blood money? Or is it blood money that is kept in debt? Because you owe the Americans $67 billion. You're a bankrupt nation. Are you going to return them their money? It's a very straight question I'm asking you today. We owe nothing to the Americans. Oh, by God, you're robbers too. That I am daylight robbery. Daylight robbery, Pakistani style. Indian mind. You seek pleasures in any trouble that, in your opinion, Pakistan gets. It is your petty-mindedness. You have no reason to be happy about it. We are happy that you will now come to Afghanistan and you will get your share of whatever Americans got, Russians got, or the Britishers even last century. So we are very happy to see Indian soldiers coming there. Also, for another reason, your 500,000 army is in Kashmir. Friends, कमाल का वीडियो दिखाया है, सजेस्ट किया, पर ये जो थे कौन थे, कर्नल सही तो नहीं, उनसे पहले जो बात कर रहे थे वो तो कमाल के इंसान थे यार। एक तो उनकी इंग्लिश इतनी महान थी कि मुझे इतने ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ रही थी कि बोल क्या रहे हैं। कई बारी तो इतना गड़बड़ बोल रहे थे इंग्लिश में ही, तो आपको नहीं आती इंग्लिश, आप हिंदी में बोल लो, आप उर्दू में बोल लो। और मेरे ख्याल से गौरव आर्या ने कोशिश भी की थी कि उनको हिंदी में बोले, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रही थी क्या बोल रहे हैं। कितनी देर तक तो हम सभी ऐसे चुपचाप सुन ही रहे थे समझने के लिए कि बोल क्या रहे हैं। और उनका वो डायलॉग जो है ना, कि फूल वाला जो डायलॉग था, कि जो फूल है वो क्या पता नहीं, कुछ बड़ा अजीब था, कि माना कि फूल है, वो कह ही रहे हैं कि पहले जो फूल है उनको क्या करना है। वो उस टाइप का जो डायलॉग था, मैं तो सुन के इतनी हैरान हो रही थी कि इतना इलॉजिकल, पर मानते हैं कि भाई फूल है, वो मान के उन्होंने उनको टाइटल ही कर दिया कि वो फूल है। और जिस तरह से बोले थे ना कि भैया मैं तो कोई ऐसा वर्ड यूज करना चाहता हूं पर वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत डिग्निफाइड हूं या वो हूं, मैंने कहा जो दूसरों को बोलते तुम फूल हो या इस टाइप से, हाँ, तो फिर आप डिग्निफाइड हुए कहां से? आपने तो पहले ही अपना डिग्निटी दिखाई दी है। एक तरफ तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, ऊपर से बोलते हो मैं डिग्निफाइड हूं। मैंने तो और भी ऐसे वर्ड्स, मतलब आपको आते हैं, हमारे जैसे हैं डिग्निफाइड, कि भैया आप बोलोगे हमें समझ ही नहीं आते, क्योंकि कई बार आप वीडियो में बोलते हो ना कि मैम ये तो आप तो फैमिली चैनल हो, इसमें तो ये गलत वर्ड आया। मैं कहती हूँ भैया हमें पता ही नहीं वर्ड्स का, तो हम क्या बताएं कि क्या वर्ड है। तो वो होता है डिग्निफाइड कि आपको वर्ड्स भी नहीं पता है तो आप यूज ही क्या करोगे। वो कहते हैं मुझे वर्ड्स पता है पर मैं डिग्निफाइड हूं इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। मैंने कहा कमाल है, एक तो यहाँ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलो, दूसरों को ब्लडी फूल या जो भी है फूल बोल रहे हो, ऊपर से आप इस तरह से बात भी कर रहे हो जो कोई डिग्निफाइड बंदा बात नहीं करेगा, ऊपर से ये कर रहे हो। पर मजेदार था और गौरव आर्या ने काफी अच्छा उनको आंसर भी देने की कोशिश की, पर उनको समझ नहीं आ रहा था। और अर्नब ने जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा, जो कर्नल हैं, वो भी था कि भैया आप कभी वापस करोगे पैसे? तो वो कहते हैं कि भैया हमने तो कोई लिया ही नहीं, हमें तो कोई वापस ही नहीं करना। तो वो कहते हैं, फिर अर्नब ने क्या बोला कि वाह दिन दहाड़े चोरी, दूसरों की ये अच्छी चोरी है, पाकिस्तान अब ये भी करने लग गया है। वो कमाल था। वैसे सबको पता है कहाँ से लोन लिए हुए, क्या सिचुएशन हो, कहते हैं जी हमने तो किसी से कुछ लिया ही नहीं है। राइट। अगर देखिए पहली बात तो ये है कि वो ये कह रहे थे, इस पॉइंट पे कह रहे थे कि हमारी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी है। एक ये जबरदस्त कमेंट आया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया से ये बेटर है, बहुत अच्छी है, इंडिया से बहुत आगे, जो सही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि एक ये स्टेटमेंट गलत थी। उनके पर्सपेक्टिव से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया से बेटर है, मगर उनको कोई विजिबिलिटी नहीं है कि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है। परंतु जिस तरीके से इंडिया मॉडर्नाइज कर रहा है अपने फोर्सेस को, जिस तरीके से इंडिया अपने मिसाइल्स को फायर करता है और आगे बढ़ रहा है, आप कंपीट नहीं कर सकते इंडिया से। तो वो उनको थोड़ा जज करना चाहिए, थोड़ा इंटरनेट में स्टडी करनी चाहिए कंपैरिजन कि इंडिया मिलिट्री क्या है, फिर उसका उनको बोलना चाहिए। तो वहाँ गलत है कि R&D जो है
पाकिस्तान ज्यादा। गौरव आर्या जो है उन्होंने अच्छा बोला था कि आप तो चाइना का माल लेके उस पे ग्रीन पेंट कर देते। बस वो एग्जैक्टली वही हो रहा है वहां पे। तो वो जो है वो मेरे ख्याल से, और चाइना को भी हमें हराना है, वो तो है, जिससे ये भी ऑप्शन ना हो कि चाइना का माल लेके ग्रीन पेंट कर दें, वो भी नहीं कर सकते, तो ऐसा करना है। और दूसरा जो वो बात कर रहे थे कि वो पैसे की, कि पैसा रिटर्न होगा कि नहीं होगा। अब उनके लॉजिक में ये था कि हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपने पैसा दिया और हमने एक सर्विस प्रोवाइड की है, तो क्या रिटर्न करना। पता नहीं कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है तो... क्योंकि सारी डिबेट तो यही हो रही थी। जैसे अर्नब गोस्वामी कह रहे थे आपने थप्पड़ खाया, फिर आप बोलते हैं अच्छा हम और नहीं मांगेंगे, अगली बार फिर आप आ जाते, फिर थप्पड़ पड़ता है आपको। और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हम पैसा रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा बनता ही नहीं हमारा देना। मतलब उनका कहने का मतलब था जो सर्विसेज, मतलब हमने जो देनी थी हमने दे दी है सर्विसेज, उसके बदले पैसा हमने ले लिया है और एंड ऑफ स्टोरी। इसे रिटर्न करने का मतलब, और उनको बार बार उसी पॉइंट पे, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दिए थे फैक्ट बेस्ड कि आपके साथ जब आपके खुद ही लैंड में ऑपरेशंस हुए, खुद ही आपके लोग मरे हैं, तो आपने सर्विस क्या दी है कि खुद के लोगों को लॉस कराने की सर्विस थी। मतलब तो वही वो कह रहे थे कि पैसा जो है आपको दिया गया था, आप पे डैमेज करने का बोले कि हमारा डैमेज हो गया तो पैसा हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन चल रही थी। मेरे ख्याल से उनको ये कहना चाहिए था कि अमेरिका ने वाकई ही जो भी किया है वो गलत किया है, और अगली बार हम पैसा नहीं लेंगे, और वो ठीक है, और जो भी हो गया वो पैसा खत्म, सर्विस में चला गया जो भी आपने किया। मगर जो भी काफी अच्छा डिबेट था, और मेरे ख्याल से बीच में कट हो गया, वरना बाद में थोड़ा धमाकेदार आ रहा था बीच में ही कट गया। पर वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें वो अपने आप को फूल कर रहे थे। मैं तो उनका डायलॉग सुन के, पिछली बार भी किसी जगह पे हमने ये सुना था, तब मुझे पता नहीं था किस कॉन्टेक्स्ट में, अब एक्चुअली में पता चला कि क्या चल क्या रहा था, तो काफी मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।